Good evening, everyone. Warm welcome to all. Welcome to the Market Outlook video for 27th December 2021. In this video, I'm going to guide you for Nifty and Bank Nifty and share with you the opportunities that can be grabbed in the markets for tomorrow's trading session. So going forward, this will be the last trading week for 2021, and we all want to learn a lot from the markets. So let us start with the video, and this is the daily time frame of Nifty, and I have applied 20 EMA on my charts just to show you that on Friday we took a resistance at 20 EMA level on the daily time frame of Nifty. So 20 EMA is at 17,176 and we took a resistance at 17,155 on Friday. Friday's low was 16,909.60. So going forward tomorrow, this will act as a support for the market, 16,909.60. So just want to say कि one thing that I have observed this week, it was कि market कभी भी low के पास बंद नहीं हुआ इस पूरे week में. On Monday, you can see that the low was 16,410, but the closing was at 16,614. तो 200 पॉइंट ऊपर लो से बंद हुआ मंडे को मार्केट. Then Tuesday को low was 16,688, but markets closed at 16,770. तो 100 पॉइंट ऊपर again low से market फिर बंद हुआ. On Wednesday, we closed near highs. Then on Thursday, it was a sideways session, and on Friday again, low was 16,909, but we closed at 17,003, above the round number of 17,000. So again, 100 point up from day's low. So this was a good thing for the bulls this week that we never closed near the day's low, and इसी वजह से अगले दिन कभी भी एक बहुत बड़ी selling नहीं आई this week. And it was also due to reduced activity of FIs in this week. Because हमने जब भी cash data देखा इस week, so there was not much activity from the FI side. Now what we can do for tomorrow's trading session, that I'm going to guide you on smaller time frame of Nifty. Just wanted to tell you कि जिस level पे high बना था Friday को, it was near 20 EMA level on the daily time frame. So as I always say you कि I use 3 EMAs in my trading, that is 9 EMA, 20 EMA and 50 EMA, and ये कुछ इस तरीके से help करती है मेरी. Like I've already told you कि Monday को Friday को जहाँ पे market खुला था वहाँ पे it was not able to sustain just because we have 20 EMA at those levels on the daily time frame of Nifty. Now let us open the smaller time frames on Nifty and discuss what can be the trading opportunities for tomorrow. So let me first talk about the data that has come on Friday. So I've already shared with you the data on our free Telegram channel. Make sure that you are a part of our free Telegram channel. FI's net position in stock futures, index futures have increased. Their net positions in index calls and index puts have reduced. Clients have reduced their net positions in stock futures, index futures, and index puts. They have increased positions in index calls. Not much can be concluded from the data, but Mondays have been known for bloodbaths. There is some negative news of night curfew in few states in India. So let's see how market opens on Monday. So this was my commentary on Friday regarding the data, that we have to see the opening of the markets on Monday because that will decide where the markets want to go. So if we talk about Friday's range, तो Friday का day high था 17,155 and day low was at 16,909.60. So now what we have to look for tomorrow. First of all, we have to uh, derive on the scenarios based on the opening of the markets. Okay. तो अगर markets नीचे की तरफ खुलते हैं somewhere around द सपोर्ट ऑफ फ्राइडे, अगर यहाँ पे कहीं खुलते हैं या फिर यहाँ पे कहीं खुलते हैं एट द लोअर पार्ट ऑफ फ्राइडेज रेंज, then it will be easier for the markets to break the support of Friday and give us some more fall. Okay. And if the market opens gap up near 17,100, 17,080 or above 17,100,
it will be easier for the markets to break the high of Friday and give us some more up move. So it will depend on tomorrow's opening कि अपन फ्राइडे का हाई तोड़ेंगे या फ्राइडे का लो तोड़ेंगे, बिकॉज नॉट मच कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डेटा. सो केयरफुली ऑब्जर्व कि कल मार्केट्स कहाँ खुलते हैं, गैप अप ओपन हो रहे हैं, गैप डाउन ओपन हो रहे हैं. अगर सपोर्ट के पास खुलेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर द मार्केट्स टू ब्रेक द सपोर्ट, बट अगर गैप अप ओपन हो रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास खुल रहे हैं, इट विल बी इजियर फॉर द मार्केट्स टू ब्रेक द रेजिस्टेंस. अब अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो लेट मी टेल यू वन थिंग. अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो एक बड़ी सी कैंडल, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी फ्राइडे को, मार्केट को कुछ ऐसा मूवमेंट देना पड़ेगा अगर एक ट्रेंडिंग डे बनना है तो. मतलब अगर कल के सेशन को ट्रेंडिंग होना है तो वी हैव टू सी सच कैंडल्स एट द स्टार्ट ओनली. रीजन इज कि अगर मार्केट यहाँ खुलता है एंड छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, then it will be hard for the markets to travel till this zone and then give a breakout. तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए ऐसा करना. एंड अगर यहाँ पे खुलता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, देन अगेन इट विल बी हार्ड फॉर द मार्केट्स टू ब्रेक दिस सपोर्ट एंड देन फॉल फर्दर. तो इट डिपेंड्स कि अगर अपन ओपन फ्लैट हो रहे हैं तो किस टाइप की कैंडल्स बन रही है. अगर अपन फ्लैट ओपन होते हैं तो जस्ट सी वन थिंग कि मार्केट को फर्स्ट हाफ एन आवर या वन आवर में ही इस लेवल या इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा टू बी अ ट्रेंडिंग डे. अगर ऐसा नहीं होता है तो देयर इज अ गुड चांस कि अगेन वी विल मूव इन दिस रेंज ओनली 17,155 से 16,900. तो ये 250 पॉइंट की जो रेंज है निफ्टी में, इट विल बी मेंटेन्ड अगर ऐसा नहीं होता है तो. ठीक है. तो व्हाट वी वांट इज कि मार्केट या तो सपोर्ट के पास खुले या रेजिस्टेंस के पास, देन अगेन वी विल हैव अ क्लियर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी. या फिर अगर फ्लैट भी मार्केट खुलता है तो वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के या तो रेजिस्टेंस के पास चला जाए या सपोर्ट के पास, देन अगेन वी कैन hope that it will be a trending day. Otherwise, in any other scenario, it will not be a trending day for tomorrow. Now let's talk about Bank Nifty and Bank Nifty में क्या चल रहा है. ठीक है. तो क्लियरली वी कैन सी कि ये जो थर्सडे का जो लो था, ये सीधा फ्राइडे को फर्स्ट कैंडल में ही टूट गया था. एंड इफ आई टेक यू टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, देन वी कैन सी दैट ये थर्सडे को लो बनाता है, यहाँ गैप एरिया पे एक लो बना, देन अगेन मार्केट ऊपर गया. फिर उसके बाद फ्राइडे को जैसे ही मार्केट खुला, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, रीटेस्ट हुआ थर्सडे के लो का, देन अगेन ब्रेकडाउन आया. तो आई जस्ट वांट टू से कि गोइंग फॉरवर्ड दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. जो ये लो ब्रेक हुआ था, दैट इज 35,100 का जो लेवल है, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट. अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, दैट इज 35,100, then markets will try to travel to 35,320. तो 200 पॉइंट की अपसाइड अपन उस केस में देख सकते हैं कि अगर 35,100 का लेवल ऊपर की साइड पे टूट जाए तो. एंड अगर ये लेवल भी टूट जाते हैं, देन अगेन वी विल सी 35,477, दैट इज 35,480 कंसिडरिंग द राउंड नंबर. तो अगर 35,100 बैंक निफ्टी ब्रेक करती है, only in that case look for a buying opportunity. Okay, long तभी जाना अगर ये 35,100 का जो लेवल है, इसको मार्केट तोड़ देता है तो. if market sustains above that, and then only we will see some short term upside in bank nifty. बट ये अभी एक अच्छी रेजिस्टेंस है बिकॉज यहाँ पे अपन ने एक ब्रेकडाउन दिया है फ्राइडे को. टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है जिस ट्रेंड लाइन पे मार्केट्स इस वीक चल रहे थे. बट ऑन फ्राइडे वी ब्रोक दिस ट्रेंड लाइन. अब 35,100 एक मेजर हर्डल है अपने लिए फॉर द कमिंग वीक. एंड अगर अपन ये वाला लो तोड़ देते हैं, दैट इज 34,600 का लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑन 15 मिनट चार्ट्स. अगर 15 मिनट चार्ट्स पे वी गिव अ ब्रेकडाउन ऑफ 34,600, ठीक है, आई हैव क्लियरली मार्क द लेवल 34,600 का अगर ब्रेकडाउन आता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, देन यू कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड. फर्स्ट टारगेट विल बी दिस वन, 34,380, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 34,020. तो ये दो टारगेट मिल सकते हैं ओनली बिलो 34,600 ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. अब बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक बात बताई थी दिस वीक कि बैंक निफ्टी का ये जो 34,000 का राउंड नंबर है, इट विल एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट. द रीजन इज दिस इज अ मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड लेवल. यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे अभी वापस किया.
and it is able to hold this zone of 34,000. सीधा 34,000 से 35,000 भी मतलब अपन ने 35,000 हिट किया था 2 दिन में 34,000 हिट करने के बाद. दैट proves that this level is a very concrete level. and again अगर आपको 34,000 के आसपास मार्केट फिर बैंक निफ्टी 34,000 के आसपास आती है तो it will again be a good buying opportunity. Okay, I'm again saying this will be a good buying opportunity and not a selling opportunity. अगर इस वीक आपको 34,000 के पास मार्केट मिलता है, for once it will again be a buying opportunity in banks. We can accumulate banks for our long term portfolio. Then agar we are closing below 34,000, it will open the doors for levels such as 32,900 and below. Okay. तो जब तक 34,000 बैंक निफ्टी इज होल्डिंग, वी कैन एक्सपेक्ट कि जब भी मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे वाले लेवल्स हिट करेगी बैंक निफ्टी, इट विल अगेन ट्राई टू गो अप. अब बैंक निफ्टी की अपॉर्चुनिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अगर 34,600 ब्रेक होता है तो लुक फॉर शॉर्ट्स. 35,100 ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी आएगी बैंक निफ्टी में. अब बैंक निफ्टी बीच में क्लोज हुई है, तो अगेन आई वुड से द सेम थिंग लाइक आई हैव टोल्ड यू इन निफ्टी कि अगर मार्केट सपोर्ट के पास खुलता है तो अगेन इजी होगा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट तोड़ के नीचे जाना. रेजिस्टेंस के पास खुलता है, it will be easier for bank nifty to break this resistance and go up. अगर फ्लैट खुलता है धीरे धीरे ट्रैवल करता है तो देन अगेन ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लेवल्स. और फर्स्ट फ्यू कैंडल्स बड़ी बड़ी बननी चाहिए, इवन अगर अपन को बैंक निफ्टी पे एक ट्रेंडिंग डे मंडे को चाहिए तो. So this was about market analysis for bank nifty and nifty. and एक और चीज, एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूँ ताकि you can learn about it. अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो लेवल है 9 EMA. सो आई हैव प्रूव्ड यू दैट कि ये जो EMAs होती है इट वर्क्स लाइक दैट, या तो ये आपको सपोर्ट देगी या फिर आपको रेजिस्टेंस देगी. बैंक निफ्टी को 9 EMA रेजिस्टेंस दे रही है, दैट मींस इट इज मोर बियरिश दैन निफ्टी ओवरऑल. मतलब कि पिछले कुछ वीक्स में जो मूवमेंट हुआ है उसमें बैंक निफ्टी ज्यादा बियरिश थी देन निफ्टी, and that is why it is taking resistance at 9 EMA levels and nifty is taking resistance at 20 EMA levels. Okay, तो ये रेजिस्टेंस बनी थी फ्राइडे को. निफ्टी 20 EMA पे रेजिस्टेंस ली डेली टाइम फ्रेम पे, और बैंक निफ्टी ने 9 EMA पे रेजिस्टेंस ली डेली टाइम फ्रेम पे. नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर आई वांट यू ऑल टू फॉरगेट अबाउट योर पास्ट मिस्टेक्स. ठीक है, जो भी आपकी पुरानी ट्रेडिंग मिस्टेक्स है, जो भी आपने की, डोंट कीप इट इन योर हार्ट. ठीक है, आपसे जो भी मिस्टेक्स हुई फॉरगेट अबाउट दैट. जो भी आपने लॉसेस किए उसके बारे में सोचते मत रहो, आगे बढ़ो. लुक कि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो. एंड जो भी आप लोग सोच रहे हो कि 1 जनवरी से मुझे ये स्टेप लेना चाहिए या फिर ऐसे ऐसे मैं करूंगा 1 जनवरी से, आपने कुछ गोल्स बनाए होंगे 2022 के लिए. सो डोंट वेट टू स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, बिकॉज I know that new year will bring new hopes, new motivation, that you can start fresh and जो भी है, but you can start doing it from today only. The reason I am telling this is कि अगर आप कोई हैबिट बनाना चाहते हो 2022 में, डोंट वेट फॉर इट कि अब 4 दिन गुजरे और मैं 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा. अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ. अभी से वो हैबिट बनाना चालू करो, ताकि जो 4 दिन इस ईयर के बच्चे हैं, यू कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट. एंड जो हैबिट आप बनाना चाहते हो वो अभी से डेवलप होना स्टार्ट हो जाए और न्यू ईयर से आपके लिए और इजी हो उसको फॉलो करना. सो दिस इज अगेन अ मैसेज फ्रॉम माय साइड. सो आई होप दैट इट वाज अ वंडरफुल वीडियो. एंड मार्केट एनालिसिस ढंग से सुनना एक बार, जो भी मैंने लेवल्स बताए, इट विल हेल्प यू आउट इन टुमारोज मार्केट. सो थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे, एंड let's meet tomorrow in the markets. Thank you.